Hi guys, welcome back to Areba Education. I am Zoe Khurshid. And this is Huda Firoz. We both are in class 7th. So in this video, we are going to cover up chapter number 1 of civics. The name of the chapter is on equality and इस वीडियो में हम equality से related concepts के बारे में पढ़ने वाले हैं in detail. So yes, without wasting any more time, let's get started. Okay, now let us do the introduction of what we will study in this video, all these topics जिनके बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे. So as you know, the name of the chapter is on equality. This is chapter number 1 of civics. So the first topic which we will study is equal right to vote. Equal right to vote में हम basically universal adult franchise को cover up करेंगे, इसका meaning cover up करेंगे and why it is important for all the people to give them equal right to vote in the democratic country like India. हम ये point cover up करेंगे. Second thing which we will study is other kinds of equality. दूसरे kinds of equality जिनकी वजह से inequality हमारी देखने को मिलती है हमें, such as caste system and religion. ठीक है. Then recognizing dignity, we will study about dignity, why it is important और ये सारी चीज़ें हम dignity के बारे में पढ़ेंगे. एंड इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, जो इक्वालिटी है वो इंडियन डेमोक्रेसी में क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो कैसे इम्प्लीमेंट होती है, वी विल कवर अप दैट. इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज. अब रैदर देन इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री राइट, तो फिर इंडिया के अलावा और जो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं इक्वालिटी से रिलेटेड जो कि देखे जा सकते हैं, हम उन इश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. सो दीज आर द पॉइंट्स विच वी विल कवर अप इन दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright, so now we are going to start with a brief introduction about this chapter. जैसा कि चैप्टर का नेम ही है ऑन इक्वलिटी, सो हमें इससे एक बेसिक आइडिया मिल सकता है कि इस चैप्टर में हम इक्वलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, इट्स डेफिनेशन, इट्स इम्पोर्टेंस एंड वेदर एवरीवन इज़ इक्वली ट्रीटेड इन इंडिया और नॉट, एंड विद सो मेनी एग्जाम्पल्स. India is a democracy. We all know that India is a democratic country. In the class 6th book, we looked at the key elements of a democratic government. These include people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. So ये सारी चीज़ें हम पढ़ कर आए हैं क्लास 6 में कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टिसिपेशन हमने पढ़ा था ना, that when people are not satisfied with the laws approved by the government, then they can show their opinion, they can show their reactions, right, by taking out rallies and doing protests. And हमने equality and justice के बारे में पढ़ा था कि ये दोनों की फीचर होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के. बट अब इस चैप्टर में हम सिर्फ इक्वलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. Equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. Let's begin by looking at Kanta's story. So now we are going to read a story which is about Kanta, who is a domestic worker, and this story is gonna be an interesting story because it is somewhat like a comic and we all like to read comics, right? And I don't think that the texts are clear for you, so you all can refer your books. So मैं explain कर देती हूँ आपको कि एक election day है, and Kanta and her friend Sujata, जो उनकी friend है कांता देवी की, they both are standing in a line to cast their votes election day पर. and कांता देवी अपने ओपिनियंस सुजाता से शेयर करती हैं कि कितना सही है यार हमारी कंट्री में कि हम एक इक्वल सिटीजन्स की तरह अपने लीडर्स को वोट कर सकते हैं. मतलब जैन साहब भी जिनके यहाँ कांता देवी वर्क करती है वो भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं. सो कोई अनइक्वालिटी नहीं है. तो उसके बाद कांता देवी वोट दे देती हैं एंड वो कहती हैं कि मैं उस कैंडिडेट को वोट करूँगी जिन्होंने हमारे एरिया में पाइप वाटर लाने का वादा किया है. वो बात अलग है कि वादा कंप्लीट होगा कि नहीं. सो सब ने वोट दे दिया, अब चले गए जैन साहब. देन जब वो घर आती है तो वो ये देखती हैं कि उनकी जो बेटी है गुड़िया, शी इज़ नॉट वेल. सो कांता देवी अपनी बेटी को काढ़ा देती है जो कि हमारे कल्चर में बहुत सालों से आ रहा है कि हैव इट सम एंड यू विल फील बेटर.
और वो कहती है कि जब मैं इवनिंग में शाम को आऊँगी देन वी विल गो टू हॉस्पिटल। देन अगेन कांता देवी और सुजाता की कन्वर्जेशन है। वो बोलती हैं कांता देवी कि गुड़िया को बहुत ज़्यादा फ़ीवर है एंड मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है, बट उससे पहले मुझे जैन साहब के घर में काम कंप्लीट करना होगा, तब मुझे एडवांस मिलेगा। ओके, सो आई एम रीडिंग दिस बॉक्स। सी, I had just read this one. Now I'm going to read this one. Don't get confused. It's no wonder that Gudiya falls ill often. The basti is never clean. तो कांता देवी बोलती हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि गुड़िया पहली बार बुखार मतलब शी फॉल्ड इल बिकॉज उनकी जो बस्ती है दैट इज़ नेवर क्लीन। सो इट्स सो ऑब्वियस कि कोई भी इंसान ऐसे इन्वायरमेंट में तो हेल्दी फिट नहीं रह सकता, राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस बॉक्स। ओके, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। सब कांता देवी जैन मैडम और जैन साहब के घर में काम कर रही हैं एंड जैन मैडम उन्हें बता रही हैं कि कॉर्नर सही से करना। देन कांता देवी उन्हें बताती है प्रॉब्लम और जैन मैडम उन्हें पैसे दे देती है, एडवांस दे देती है, बट वो ये भी कहती हैं कि डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। देन उसी इवनिंग जब कांता देवी एंड उनकी बेटी हॉस्पिटल जाते हैं, सो क्या होता है कि दे हैड टू स्टैंड इन अ वेरी लॉन्ग लाइन। ओके, आई एम रीडिंग दिस बुक्स। ओके, सो दे हैड टू स्टैंड इन अ वेरी लॉन्ग लाइन एंड तभी कांता देवी सोच रही हैं कि क्या नहीं, कितना अजीब है, मतलब जब वोट देने गए थे हम सब सारे एक लाइन में खड़े थे, बट अब जैन मैडम और जैन साहब को तो कभी भी ऐसी लाइन में खड़े नहीं होना होगा क्योंकि वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे एंड वो पब्लिक हॉस्पिटल गई थी। सो अभी हम पढ़ेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल पब्लिक हॉस्पिटल के बारे में चैप्टर नंबर 2 में, बट अभी ये सोच रही है कि कितना डिफरेंस है। मतलब जब वोटिंग पर आई बात तो सब एक लाइन में खड़े हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अदर थिंग्स देन व्हाई देयर इज़ एन inequality in our country. There is a question given in the blue text in the last box. We will read that also. Do you think Kanta has enough reason to doubt whether she really is equal? List 3 reasons from the story above that might make her feel like this. So हमें बस यही बताना है कि क्या आपको लगता है कि कांता के पास काफ़ी रीजन्स है ये बताने के लिए, ये डाउट करने के लिए कि वो इक्वल है या नहीं, एंड यू हैव टू टेल 3 रीजन्स विच जस्टिफाई योर स्टेटमेंट. सो दिस विल बी योर होमवर्क. You can write your own answers in the comment section. So yeah, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट. Now we will move to the next topic. भी एजुकेशन क्यों ना हो, वो रिच हो पुअर हो, बट स्टिल दे आर अलाउड टू वोट. दिस इज़ नॉन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड एज इट प्रमोट्स इक्वालिटी, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया. तो यही हमने पढ़ा है इस टॉपिक में अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन. इक्वल राइट टू वोट, दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इस टॉपिक में हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया. So let us start. The first topic here is that in a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This is called universal adult franchise and it is an essential aspect of all democracies. तो universal adult franchise क्या होता है? सबसे पहले तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट. इंडिया में सारे लोगों को राइट है वोट देने का. हु द पर्सन हु इज़ अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, ही और शी इज़ अलाउड टू वोट. ठीक है. तो फिर ऐसी कंट्री में
लाइक इंडिया ऑल अडल्ट, सारे जो अडल्ट लोग हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, रिच और पुअर, तो सारी चीज़ों को साइड में रख के वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनके लाइक हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, वो कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं, वो रिच है पुअर है, इन सारी चीज़ों को साइड में रख के दे आर अलाउड टू वोट एंड दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। किसी भी पर्सन की बिफोर दे लाइक गिव द वोट, उनके कास्ट को, उनके रिलीजन को, उनकी एजुकेशन को, वेदर दे आर रिच और पुअर, उनकी वेल्थ को, किसी चीज़ को नहीं देखा जाता है। दे लाइक द पर्सन इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड above 18 years, so they are allowed to vote and this is called universal adult franchise and it is essential, it is an essential aspect of all democracies. all democracies मतलब सारी दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. Why it is important? Now let us study that. So the second point given here is that the idea of universal adult franchise is based on the idea of equality. समझ रहे हो? तो फिर जो universal adult franchise है ये क्यों important है? Because it promotes equality. और democratic country में equality तो बहुत ज़्यादा important होती है ना, तो that is why ये equality को ही promote कर रहा है. तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी, because it states that every adult in a country irrespective of their wealth and the community she or he belongs to has one to vote. वही यूनिवर्सल adult franchise का यही तो मीनिंग है, that the irrespective of their wealth, उनके पास कितना पैसा है, whether they are rich or poor, बट स्टिल इस चीज़ को भी इग्नोर किया जाता है, उनकी कम्युनिटीज़ को भी इग्नोर किया जाता है. इन सब को साइड में रख के वो किसी भी कास्ट को फॉलो करते हों, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हों, उनके पास कितनी भी एजुकेशन. As moving ahead to our chapter, now I am here with one more important topic of this chapter, which is other kinds of equality. So basically इस topic में हम उन inequalities के बारे में discuss करेंगे which exist in India but they are apart from being poor and rich. मतलब according to the wealth वाली जो inequality है, उसके अलावा जो inequalities इंडिया में exist करती है, now we are going to read about them. People like Kanta have the voting rights but their daily living conditions are far from equal. They experience inequality in different ways. So मैंने आपको पूरा कांता की स्टोरी बताई थी and I concluded by saying that कि जो कांता थी she had voting rights but when it came to daily living conditions she was treated unequally. Alright, but ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांता देवी के साथ हुआ था. People like Kanta in India, like they also experience the same thing. They experience inequality in different ways. मतलब वो inequality को बहुत सारे तरीक़ों में experience करते हैं. Now कौन से ways में we are going to read about them. One of the most common forms of inequality in India is the caste system. So जो सबसे common form है inequality का हमारे इंडिया में वो है caste system. In rural India, caste identity is something that is experienced from the young age. So rural India में मतलब village वाले areas में caste identity एक ऐसी चीज़ है which you experience from young age. But in urban India, people no longer believe in caste. But जो urban India है मतलब cities and towns वाला area है, वहाँ पर लोग उतना caste system में believe नहीं करते हैं. Matrimonials shown from a leading English newspaper reveal that the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. सो आपकी बुक में 3 मैट्रिमोनियल्स लिखे हुए हैं जो एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर से लिए हुए हैं एंड दे रिवील दैट जो कास्ट का जो इशू है ना, कास्ट सिस्टम का, ये बहुत पहले से हमारे इंडिया में है. ऑलराइट, एंड अभी भी जो हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस हैं उनके माइंड में भी ये कास्ट सिस्टम अभी भी है जो कि मैट्रिमोनियल्स शो करते हैं. अब मैट्रिमोनियल्स क्या होता है? मैट्रिमोनियल्स इज़ समवट लाइक रिलेटेड टू मैरिज. मतलब
मैट्रिमोनी इज़ लाइक अ मैसेज कि आपको कैसा अपना लाइफ पार्टनर चाहिए। ऑलराइट, सो आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ फर्स्ट मैट्रिमोनियल में कि SC/ST एक्सक्यूज़ दैट इज़ क्लियरली पॉइंटिंग ऑन द कास्ट सिस्टम। सेकेंड में लिखा है गुप्ता बॉय, दैट इज़ ऑल्सो तमिल ब्राह्मण, that is also clearly talking about the caste, you can say that is pointing on the caste system. So SC/ST excuse, Gupta boy, Tamil Brahmin, these three are the references to caste in the matrimonial advertisements. Dalit is a term that the so-called lower castes used to address themselves. So Dalit एक ऐसा term है जो lower caste वाले लोग अपने आप को address करने के लिए use करते हैं. So as you can see in the picture, it is about the caste system in India. So सबसे top पे है Brahmins, then Kshatriyas, then Vaishyas, then Shudras and at the last Dalits. So अभी history में हम पढ़ कर आए हैं Brahmins के बारे में, उनकी importance बढ़ रही थी. देन क्षत्रियास के बारे में और अच्छे से हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे. वैश्य एंड शूद्रास के बारे में हम उतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं है. एंड दलित्स के बारे में नाउ वी आर गोइंग टू लर्न. दलित मीन्स ब्रोकन. बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट पॉइंट टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. सो बेसिकली दलित मतलब ब्रोकन होता है. एंड इस वर्ड को यूज़ करके लोअर कास्ट वाले जो लोग हैं दे वांट टू शो कि कैसे वो थे एंड कैसे सोसाइटी ने उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते करते लाइक यू कैन से तोड़ दिया है. ओम प्रकाश वाल्मीकि इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन wrote about his experience. सो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जूठन में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. एंड ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज अ दलित राइटर. ऑलराइट, so during his schooling days he had to sit on the floor outside the class. In class 4th he had to sweep the school and a huge playground. So उनके स्कूलिंग डेज़ में उन्हें ज़मीन पे बैठना पड़ता था, वो भी आउटसाइड द क्लास. ऐसे उन्हें ट्रीट किया जाता था स्कूल में क्योंकि वो एक दलित स्टूडेंट थे. एंड 4th क्लास में उन्हें पूरा स्कूल साफ़ और प्लेग्राउंड को साफ़ करने के लिए कहा गया था, जो कि एक इम्पॉसिबल है. मतलब एक क्लास 4th के बच्चे से इतना काम, यार हद हो गई. मतलब he became a spectacle for everyone was watching him. He was covered with dust and was not even allowed to drink water. He was made to do this for few days until one day his father by chance saw him. So क्या हुआ कि वो करते रहें क्योंकि उनके पास और कोई यू कैन से और कोई रास्ता नहीं था. एंड ही वॉज कवर्ड विद डस्ट और उन्हें पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी. उनसे ये कुछ दिनों तक करवाया गया क्योंकि यार वैसे भी एक 4th क्लास का बच्चा है जिसे पूरा स्कूल साफ़ करने के लिए दिया गया है. एंड इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल कि वो एक दिन में हो जाएगा क्योंकि मतलब जो नॉर्मल स्वीपर्स भी होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. एंड दे ऑल्सो टेक टाइम. बट जस्ट चेक कि क्लास 4th oh my. ओके, सो नाउ बैक टू द टॉपिक. सो ये करते रहे जब तक कि एक दिन उनके फादर ने उन्हें ये करते हुए देख लिया. His father confronted the teacher and told him that one day Om Prakash would study right there and many more would follow him. So उनके फादर ने टीचर को कन्फ्रंटेड करते हुए कहा कि एक दिन ओम प्रकाश इसी स्कूल में पढ़ेगा और अकेले नहीं और भी दलित स्टूडेंट्स को लेकर. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट ओम प्रकाश वाल्मीकि स्टोरी.
and I recommend you to see his autobiography Jutan. You will get more and more ideas. Now we are going to read about the another type of inequality which Ansaris faced. The Ansaris were treated unequally on the basis differences of religion. They were looking to rent an apartment in the city. They were about to take an apartment at the first sight, but the moment the landlady knew their names, she declined to rent the house. So Ansaris जो मुस्लिम है, मतलब इनके नेम से समझ में आ रहा है ना, मुस्लिम्स है. सो उनको ना एक अपार्टमेंट रेंट पे लेना था. एंड जब वो मतलब फर्स्ट टाइम देखने गए तो उन्हें उसी टाइम फर्स्ट साइट पे ही वो अच्छा लग गया अपार्टमेंट. बट जब लैंड लेडी को उनके नेम के बारे में पता चला, देन शी गॉट टू नो कि वो तो मुस्लिम है. दैट्स वाई उन्होंने मना कर दिया. सो ऐसे भी इनइक्वालिटीज़ हो रहे हैं हमारे इंडिया में, दैट इज़ बेस्ड ऑन द रिलीजन. ओके. एंड सिर्फ एक अपार्टमेंट में नहीं हुआ, जब वो और भी अपार्टमेंट्स उन्होंने देखे तो वहाँ पर भी अजीब अजीब एक्सक्यूज़ेस, जैसे कि यू आर नॉन वेजिटेरियन, बल्कि उसके पास से फ़िश की स्मेल आ रही थी, तब भी उन्होंने मना कर दिया. इतने सारे यू कैन से रिजेक्शंस पाने के बाद उन्हें एडवाइस किया गया कि वो अपना सरनेम चेंज कर दें. मतलब एक इंसान, मतलब एक फैमिली को अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, बिकॉज ऑफ देयर सरनेम, एंड दे एडवाइस टू चेंज द सरनेम एक अपार्टमेंट रेंट करने के लिए. मतलब यार लिटरली वाओ. That was all about the Om Prakash Valmiki story and the Ansaris. I hope आपको दोनों स्टोरीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी. एंड इफ़ यस, सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि इस तरह की इनइक्वालिटीज़ हमारे कंट्री में और भी लोग अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, विच वी डोंट नो. एंड या, दैट वाज अबाउट दिस टॉपिक. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी. तो मैं स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दूं कि जो पिक्चर में स्पेलिंग मिस्टेक है ना, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, बल्कि जो इस टॉपिक का मोटिव है, लेट्स कम टू दैट. When persons are treated unequally, their dignity is violated. Now, what is dignity? So, dignity हम समझ सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट तो पता ही होगा, मतलब हम इसे अपनी लाइफ में बहुत बार यूज़ भी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके फ्रेंड ने आपको इनवाइट नहीं किया अपने बर्थडे पार्टी में, एंड आपको याद भी नहीं दिलाना है ना, आप सोच रहे हो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी. आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है. सो दैट इज़ द सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट इज़ द डिग्निटी. सो यहाँ पर वही चीज़ है कि जब लोगों को अनईक्वली ट्रीट किया जाता है तो उनकी डिग्निटी हर्ट हो जाती है. डिग्निटी इज़ द राइट ऑफ अ पर्सन टू बी वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड फॉर देयर ओन सेक एंड टू बी ट्रीटेड एथिकली. सो डिग्निटी हर इंसान का एक राइट है जो उन्हें रिस्पेक्ट और वैल्यू देता है उनके अपने सेक के लिए. एंड they deserve to be treated ethically, not on the basis of their caste, religion, class and background. Okay. Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion which hurt their dignity. तो अभी जस्ट हम पढ़ कर आए ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज की स्टोरी के बारे में, कैसे उन्हें अनईक्वली ट्रीट कर रहे थे लोग. सो यहाँ पर वही बताया गया है कि जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज को कास्ट और रिलीजन के बेस पे जब डिस्क्रिमिनेट किया गया तो उनकी डिग्निटी हर्ट हुई, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई, राइट. क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि को लगा कि वो बस एक दलित कास्ट से हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है. एंड अंसारीज मुस्लिम्स थे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन उनके साथ ऐसा अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ था कि उन्हें सरनेम चेंज करने के लिए भी एडवाइस किया गया था. बोथ ऑफ देम डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स.
सो दोनों ही ऐसे ट्रीटमेंट नहीं डिज़र्व करते हैं. दे बोथ डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स डू. अब इस टॉपिक को हम अगर वैल्यू किस तरह समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि when we treat people equally it means that we are recognizing their dignity, we are recognizing their self respect. On the other hand, when we are treating them unequally it means that we are not recognizing their dignity and ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा. मतलब जस्ट इमेजिन कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक 4th क्लास के बच्चे थे, अगर उनके फादर ने उन्हें नहीं देखा होता, राइट, तो वो तो पूरा स्कूल तो कर ही देते, मतलब इतना प्रेशर था उनके ऊपर, तो वो पूरा स्कूल प्लेग्राउंड साफ कर ही देते. वैसा ही उनके साथ ट्रीटमेंट होता ही रहता. अब आगे आने वाली जनरेशन जो है तो वो भी वैसा ही, मतलब उनके माइंड में तो ऐसा माइंडसेट हो गया ना. वैसे भी बच्चों का माइंडसेट कैसा होता है कि अगर बच्चे तो उन्हें जिस तरह, मतलब ये भी है ना कि अगर आप किसी बच्चे को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो तो वो उसके माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है. सो वही चीज़ है कि अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि को नहीं बताया होता तो वो अपनी ऑटोबायोग्राफी कभी लिखते ही नहीं. मतलब उन्हें तो डिफरेंस ही पता नहीं चलता ना. उन्हें लगता है तो नॉर्मल है, ये सोसाइटी का बस मतलब पार्ट है. सो दिस वाज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी. So you should treat people equally and you should recognize their dignity, okay, and you should treat them on the basis of right or wrong and you can say good or bad, not on the basis of their caste, religion, class or background. Equality in Indian democracy. What does this mean is equality in India, in the country India. How does Indian constitution resembles and promotes equality? इस टॉपिक के बारे में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं. So the point which we are having is the Indian constitution recognizes every person as equal. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर पर्सन को, सारे लोगों को इक्वल कंसिडर करता है, रिकॉग्नाइज करता है. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन अवर कंट्री, यानी सारे लोग, हर एक पर्सन ऑफ अवर कंट्री, चाहे वो मेल हो, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equals. It doesn't matter वो कौन से caste से belong करते हैं, कौन से religion को follow करते हैं. It includes the tribes, educational and economic backgrounds. इन सारी चीज़ों को ignore करके they are considered and recognized as equal. तो फिर उनके कास्ट को, रिलीजन को, ट्राइब को, एजुकेशन को, वेल्थ को, बैकग्राउंड को, किसी चीज़ को नहीं देखा जाता. सबसे पहले यही कंसिडर किया जाता है दैट दे आर इक्वल. लेकिन पहले क्यों बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी देखी जाती थी? बिकॉज नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट. पहले ना तो कॉन्स्टिट्यूशन था और ना तो कोई लॉ था, बल्कि कास्ट सिस्टम जैसी चीज़ों को और भी ज़्यादा लोग प्रमोट करते थे. तो फिर पहले लॉ नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. दैट इज़ वाई पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड एंड इल ट्रीटेड. लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लॉज भी बन गए हैं. सो दैट इज़ वाई एवरी पर्सन इज़ कंसिडर्ड इक्वल. नाउ लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक. इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. नाउ वी विल स्टडी, अभी हम दूसरे पॉइंट्स भी कवर अप करेंगे इस टॉपिक के. सो दिस रिकग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिगार्डिंग इक्वालिटी क्या लिखा है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. हर एक पर्सन लॉ से पहले इक्वल कंसिडर किया जाता है. which means every person has to obey the same rules. सारे लोगों को एक सेम रूल ही obey करना पड़ेगा. It doesn't matter कि वो president हैं, prime minister हैं, every person has to obey the same rules. Second point, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are male or फीमेल.
तो फिर ये जो पर्सन जो है वो डिस्क्रिमिनेट हम उसे नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट द पर्सन किन चीज़ों के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, रिगार्डिंग देयर रेस, वो किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, देयर प्लेस ऑफ बर्थ, दे आर फीमेल और मेल, उनके जेंडर को भी हम नहीं, उनके जेंडर के बेसिस पे भी उन्हें हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. तो ये सारी चीज़ों के बेसिस में वी कैन नेवर डिस्क्रिमिनेट अ पर्सन. Third point which we are having is every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets. All persons can use publicly available wells, roads and bathing ghats. तो फिर ये क्या चीज़ है, मतलब सारे लोगों को, हर एक पर्सन को सारी पब्लिक प्लेसेस में हर एक पर्सन फ्रीली जा सकता है. द पर्सन हैज़ द एक्सेस टू गो टू ऑल पब्लिक प्लेसेस. हम ये नहीं बोल सकते कि तुम यहाँ नहीं जा सकते हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो. ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री हैव द एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस. तो फिर हम किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर सकते हैं और उनको हम मना नहीं कर सकते हैं किसी जगह से जाने से, because it's written in the constitution that they have the right to go to all the public places. And fourth is untouchability has been abolished. untouchability क्या होता है, बेसिकली लो कास्ट से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, दैट इज कंसिडर्ड एज untouchability. तो फिर ये जो untouchability है ना, दिस हैज़ बिन abolished, ये ख़त्म हो गई है. इसको आप नहीं कर सकते हो किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट on the basis of their caste. So untouchability has been abolished. And other than these points, the two ways in which government has tried to implement the equality which is guaranteed in the constitution are through laws and through government programs and schemes to help disadvantaged communities. One such scheme is midday meal. तो फिर अभी कॉन्स्टिट्यूशन में तो सारी बातें लिख रखी हैं दैट द इक्वालिटी इज़ गारंटीड और इक्वालिटी तो देनी है, लेकिन अभी गवर्नमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करती है इक्वालिटी को. सो टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो ये गवर्नमेंट कैसे करती है, थ्रू लॉज एंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. एक तो लॉज बना के, है ना, सारे मतलब कानून और लॉज बना के वो करते हैं. एंड अदर देन दैट दे ऑल्सो लॉन्च प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, जिससे वो जैसे कि मतलब स्कूल्स में लॉन्च करते हैं, और दे जस्ट लॉन्च दीज प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स टू हेल्प द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, जैसे कि पुअर लोगों के लिए एंड इट्स लाइक फॉर द लोअर कास्ट पीपल. So in सबको to give them more opportunities, they launch these programs and schemes to help them. And one such scheme is midday meal. तो एक example इस scheme का क्या है, midday meal. And now let us study about midday meal in more detail. midday meal scheme. तो midday meal scheme के बारे में we will study in more detail now. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिड डे मील होता क्या है. सो इट रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक लंच. तो फिर ये एक प्रोग्राम है दैट वाज लॉन्च्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन ऑल द एलिमेंट्री स्कूल्स ऑफ द कंट्री. तो इसमें क्या हो रहा था, द मेन रीज़न वाई इट वाज लॉन्च्ड इज़ टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद कुक लंच, ताकि बच्चों को फ्री में कुक लंच मिले स्कूल में. इस वजह से इसे लॉन्च किया गया था. अभी सबसे पहले कहाँ लॉन्च हुआ था और कब लॉन्च हुआ था. Firstly it was launched in Tamil Nadu, because Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 तो तमिलनाडु में सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था और 2001 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था. अभी इसके इफ़ेक्ट्स क्या थे, so we will study about that. So this program has had many positive effects. इसके क्या कैसे इफ़ेक्ट्स आए, इसके पॉजिटिव अच्छे इफ़ेक्ट्स आए इसके कैसे. These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending the school. तो अभी जब बच्चों को फ्री में खाना मिल रहा है, सो ऑब्वियसली मोर पुअर चिल्ड्रन विल गो टू द स्कूल. अब वो खाने के बहाने स्कूल जाते थे एंड दे वर ऑल्सो गेटिंग द एजुकेशन. तो ये तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, राइट. द अटेंडेंस ऑफ द चिल्ड्रन इम्प्रूव्ड, बच्चों की अटेंडेंस बढ़ गई, ज़्यादा बच्चे स्कूल जाने लगे. एंड लाइक दे डिड नॉट रिटर्न बैक टू देयर होम्स टू ईट द लंच. सो दैट इज़ वाई उनका अटेंडेंस अच्छा होने लग गया.
their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer needed to do so. मैंने बोला ना, बच्चे अपने घर वापस चले जाते थे खाना खाने के लिए, फिर मम्मियों को अपना काम छोड़ के आना पड़ता था. And if their mothers were some kind of like domestic workers, तो फिर उन्हें अपना काम छोड़ कर घर वापस आना पड़ता. They had to interrupt their work to feed their children, but अभी बच्चे स्कूल में खाना खाने लग गए थे, so that is why their mothers no longer needed to do so. This program has also helped to reduce caste prejudices because both lower and upper caste children in the school eat this meal together. अभी ये कास्ट सिस्टम में भी हेल्प कर रहा था. कास्ट सिस्टम है, इसको भी बड़ा कम करने में इसने हेल्प किया, क्योंकि बोथ लोअर कास्ट और अपर कास्ट के लोग बच्चे खाना खाते थे साथ बैठ के, राइट. एंड लास्टली दलित women have been employed to cook the meal. अब इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, तो दलित वीमेन जो थी उनको टू कुक दीज मील्स उन्हें रख लिया गया स्कूल में, सो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया. सो दिस स्कीम हैज़ हैड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स एंड दिस इज़ सच अ गुड स्कीम. इससे बच्चों की अटेंडेंस बढ़ी और their mothers did not interrupt their work anymore, and Dalit women have been employed to cook the meals. So these are all the positive effects of the midday meal. And now let us come to the next topic. Issues of equality in other democracies. मतलब issues which are related to equality in other democratic countries. So the first point which we are having is, in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. तो अभी तक हमने पढ़ा था कि इंडिया में लोगों को there is caste system और religion के basis पे लोगों को discriminate किया जाता है, and their race and all, ये सारे हमने इस सब के बारे में हमने पढ़ा था, that people are treated really unequally. लेकिन अभी इंडिया को छोड़ के जो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी इनइक्वालिटी देखी जा सकती है, तो फिर वहाँ पे भी द इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी आर प्रेजेंट. तो फिर इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट एन एग्जाम्पल. सो फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी USA में, द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. So what does this mean is USA में जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं उनके ancestors यानी उनके परदादा और ये सारे मतलब परदादा एंड ऑल, वो उनको लेकर आया गया था as slaves टू USA, तो ताकि वो काम कर सके. लेकिन उनके परदादा लोगों को लेकर आया गया था, राइट. उन्हें थोड़े लेकर आया गया था, बट स्टिल उनके एंसेस्टर्स की वजह से अभी भी अफ्रीकन अमेरिकन पीपल लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ठीक है. तो फिर उनके एंसेस्टर्स के बेसिस पे वो बहुत ही लाइक दीज अफ्रीकन अमेरिकन्स आर मे बी दे आर एजुकेटेड और उनके पास भी हाई पोस्ट क्यों ना हो, बट स्टिल उनके एंसेस्टर्स की वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट दिस इन मोर डिटेल, क्योंकि इसकी वजह से ही स्टार्ट हुआ था सिविल राइट्स मूवमेंट. तो अब हम पढ़ेंगे सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में इन मोर डिटेल. सिविल राइट्स मूवमेंट. ओके, नाउ हम सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल राइट्स मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था. सो लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. रोजा पार्क्स वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन. Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. तो पहले क्या होता था इन USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पहले मतलब अगर एक बस है एंड उसमें एक अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन एक सीट पे बैठा हुआ है, तो फिर अगर एक अमेरिकन पर्सन एंटर करता है and if there is no place for the American person to sit anywhere, तो फिर ये जो अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन है उसको अपनी सीट पे से उठ जाना है और उसको अपनी सीट अमेरिकन पर्सन को दे देनी है. ये पहले होता था क्योंकि पहले अमेरिकन लोगों को ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए जाते थे, अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को डिस्क्रिमिनेट ज़्यादा किया जाता था. तो इसी तरीके से रोज़ा पार्क को अपनी सीट दे देनी चाहिए थी उस वाइट मैन को, बट शी डिडंट गिव हर सीट टू दैट वाइट मैन
and she was sitting on her seat. तो फिर her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as civil rights movement. तो उनके मना करने से, उनके refusal से उस दिन क्या स्टार्ट हुआ, उस दिन स्टार्ट हुआ सिविल राइट्स मूवमेंट, क्योंकि बात बड़ी होगी एंड व्हेन यू नो अ लॉट ऑफ मोर पीपल मस्ट हैव जॉइंड हर. तो ऐसे होते होते ज्वाइन कर लोगों ने उनके प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया एंड इट लेड टू सिविल राइट्स मूवमेंट. सेकेंड पॉइंट, द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion और national origin. अब ये जो civil rights movement है, इसका मेन काम क्या था? What was the motive of civil rights movement? Was to prohibit discrimination on the basis of race, religion और national origin. Mainly ये जो discrimination African American लोग face कर रहे थे उसके against ये था, ये civil rights act था 1964 का. It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. अब पहले it was not only for the rights of African American people, वो सिर्फ discrimination के उसके लिए नहीं था, but also जो African American स्टूडेंट्स थे, चिल्ड्रन थे, वो भी उसके लिए भी था कि वो जो अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन हैं वो उसी सेम स्कूल में जाएंगे जहाँ पे अमेरिकन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. तो ये इस राइट के लिए भी था. सो इट वाज ओनली फॉर द राइट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन पीपल, चिल्ड्रन एंड ऑल. ठीक है, बट स्टिल however despite this a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. लेकिन इसके बावजूद भी इतने सारे मेजर्स लिए गए, लेकिन फिर भी अब इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेटिंग जो सेंस होता है ये तो हमारे ब्रेन में हमेशा रहता है. सो दैट इज़ वाई इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, African Americans, they still were the poorest in the country. So we studied about the civil rights movement in this topic. I hope so you all understood the main motive behind this. How did it start? Rosa Parks ने start किया था and what was the main motive of this civil right movement. So I hope you all understood that. And now let us come to our next topic. गाइज अब हम इस चैप्टर के एंड के बहुत ज़्यादा करीब हैं, बिकॉज इट इज़ द सेकेंड लास्ट टॉपिक एंड इट इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट मीन्स कि एक छोटा सा पोर्शन है जो कि आर्टिकल 15 से लिया हुआ है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है. एक्चुअली आर्टिकल 15 में और भी क्लॉजेज हैं, बट क्लास 7 के सिलेबस के हिसाब से आपको अभी 2 ही क्लॉजेज दिए हुए हैं. So prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. So Article 15 says that the discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth has been prohibited. Now जो clause 1 है Article 15 का, it says that the state shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. अब ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं ना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यू नीड टू रीड देम वेरी केयरफुली, बिकॉज अभी क्लॉज 1 में स्टेट की बात हो रही है. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, मतलब इंडियन सिटीजन की बात हो रही है, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, मतलब इनमें से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं स्टेट. बट व्हेन इट कम्स लाइक रेस प्लस फैक्टर, यहाँ पर सिर्फ रेस की बात कर रही हूँ मैं. इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू राइट हियर, जस्ट I don't know why I can't do this. I'm sorry. Okay, so race प्लस फैक्टर है. अगर रेस प्लस फैक्टर है मतलब कि अगर बैटल लड़ने जाना है, ठीक है, तो उस केस पे नाइट टाइम है, तो उस केस पे जो मिलिट्री है या जो गवर्नमेंट है वो लाइक ब्लैक पीपल को ज़्यादा प्रेफर करेंगी, क्योंकि वो लोग अंधेरे में मतलब
ऐसा भी नहीं कि एकदम गायब हो जाएंगे, मतलब बहुत अच्छे से नहीं दिख पाएंगे ना। सो एक तरह से ये की पॉइंट हो जाएगा उनके लिए। एंड सेक्स प्लस एफिशिएंसी, मतलब व्हेन इट कम्स विद सेक्स प्लस एफिशिएंसी, तब भी स्टेट एक तरह का डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर जैसे बैटल लड़ने जाना है तो वहाँ पर वो लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि मेल जाए, मतलब वही प्रेफर करेंगे मेल ही जाए, ऐसा ही होगा। क्योंकि व्हेन इट कम्स विद सेक्स प्लस एफिशिएंसी, ऐसा नहीं है कि स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस एंड सेक्स, अगर इंडिविजुअल हैं तो नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। बट व्हेन इट कम्स विद रेस प्लस फैक्टर एंड सेक्स प्लस एफिशिएंसी, देन दे कैन, मतलब एक तरह से प्रेफर कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट। So now the second clause of Article 15 says that no citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them, be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels, and places of public entertainment, or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of the general public. So जो clause 2 है, it says कि no citizen, now अभी no citizen की बात हो रही है, clause 1 में state की बात हो रही थी। ओके, सो ये डिफरेंस ध्यान में रखना है कि क्लॉज 2 में सिटीज़न की बात हो रही है कि सिटीज़न डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और एनी ऑफ देम। एंड जैसे कि अभी हम पहले टॉपिक में पढ़ कर आए हैं कि हाउ डज इंस्टीट्यूशन इंश्योर इक्वलिटी, तो हमने पढ़ा था कि मतलब एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड्स, को पढ़ कर आया ना। तो उसी तरीके से आर्टिकल 15 में इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, है ना। हमने पढ़ा था ना हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वलिटी, सो इट इज़ लाइक एन एग्जाम्पल। तो इसमें यही है कि एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, एंड दे कैन यूज़ वेल्स, टैंक, मतलब जो भी जनरल पब्लिक के लिए है वो मतलब किसी भी रेस, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट के लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नो मैटर कि उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, सेक्स क्या है। सो इन बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। सो या दैट वाज अबाउट दिस आर्टिकल 15. We read only 2 clauses, and now let's move to the last topic. Now we have come to the last topic of this chapter, and the name of the topic is challenge of democracy. Challenge of democracy मतलब वो सारे challenges जो कि एक democratic country में देखे जा सकते हैं। So first of all, democratic countries और ये जो democracy होती है, it is really hard to maintain. अभी क्योंकि एक country democratic क्यों ना हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सारे लोगों के राइट्स को इंश्योर करना कि वो इक्वली ट्रीट हो रहे हैं कि नहीं, और कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, और उनकी डिग्निटी तो मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना दैट इज़ रियली हार्ड. So the point which is given over here is no country can be described as being completely democratic. तो फिर हम किसी भी कंट्री को completely democratic नहीं कह सकते हैं. Even if the country is democratic, हो सकता है वहाँ पे लोगों को अच्छे से ट्रीट ना किया जाता हो सकता है लोगों को इक्वली ट्रीट ना किया जाता हो. So there are many possible reasons कि मतलब एक country democratic है but still it cannot be described as being completely democratic. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for greater recognition of equality on existing as well as new issues. तो फिर इसका मीनिंग क्या है? आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी कम्युनिटीज़ मिलेंगी जो कि डेमोक्रेसी के आइडिया को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन
फिर भी ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ये जो आपका इक्वालिटी है और डिग्निटी है इसको वायलेट करें, तो फिर दे आर बोथ काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज़, ठीक है। सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर द रिकग्निशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन। अब बस यही एक स्ट्रगल है कि सारे लोगों को एज इक्वल कंसिडर किया जाए, उनकी डिग्निटी भी मेंटेन रहे। यही चीज़ को हमेशा इम्पॉर्टेंस दी जाती है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है, गिविंग द पीपल इक्वल राइट्स, उनको राइट टू वोट देना एंड सारे राइट्स देना लोगों को। दैट इज़ व्हाट अ डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स। और डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को इक्वल भी कंसिडर किया जाता है और उनकी डिग्निटी को भी मेंटेन किया जाता है, और ऐसा भी देखा जाता है कि कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेट किसी भी चीज़ के बेसिस पे ना हो। तो डेमोक्रेटिक कंट्री होना आसान बात नहीं है, इट इज़ रियली हार्ड। लेकिन इस चैप्टर में हमने यही चीज़ पढ़ी है कि हाउ लाइक इक्वालिटी इज़ मेंटेन्ड इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, और इक्वालिटी का क्या रोल होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, issues regarding democracy and all. I hope so you all understood this topic as well as the whole chapter. We studied a lot of topics और I hope so आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा. And now let us come to the conclusion. Acha, so guys, we have done all the topics which were in your class 7 civics NCERT book, chapter number 1, and now we are going to do a quick sum up of whatever we have studied in this video. So firstly, we studied about equality. Equality is the essence of democracy. It is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. Then we studied about the story of Kanta, and the main motive of the story of Kanta Devi was to tell us that people like Kanta have voting rights, but still they have to experience inequalities in different ways on their daily living conditions. Then we studied about the universal adult franchise. It refers that all citizens who are 18 years and above, irrespective of their caste or education, religion, color, race, and economic conditions, are allowed to vote or they are free to vote. In a democracy, a universal adult franchise is important as it is based on the idea of equality. So यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं, सो बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स कि जितने भी सिटीजन्स हैं अगर वो 18 ईयर्स से अबव हैं या 18 ईयर्स के हैं, सो दे आर अलाउड टू वोट। एंड ऐसा नहीं है कि किसी भी उनके मतलब कास्ट, एजुकेशन, रिलीजन, कलर, रेस या इकोनॉमिक कंडीशंस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, बल्कि इन सारी चीज़ों के अलावा बस ये चीज़ देखी जाती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में कि क्या वो इंडियन सिटीज़न है, क्या वो 18 ईयर्स या उसके अबव हैं। ओके, एंड डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी. There are different kinds of inequalities which exist in India. One of the more common forms of inequality in India is the caste system. हमने caste system के बारे में डिस्कस किया था, हमने दलित के बारे में भी डिस्कस किया था. Dalit means broken, which the so-called lower castes use to address themselves. So दलित का मतलब broken होता है, एंड जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं वो अपने आप को मतलब एडजस्ट करने के लिए ये यूज़ करते हैं टर्म, क्योंकि दे वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स कि कैसे वो थे एंड कैसे सोसाइटी ने उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हुए एक तरह से तोड़ दिया. देन वी स्टडीड अबाउट ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी स्टोरी, एंड बोथ ऑफ देम रिवील द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ विच आर एक्सपीरियंस्ड बाय Indians. Then we studied about dignity. What is dignity? Dignity refers to thinking of oneself and other persons as worthy of respect. आसान भाषा में बोले तो dignity means self respect.
The Indian Constitution recognizes every person as equal. Midday meal program, which was first introduced by Tamil Nadu government. This refers to all government elementary schools to provide children with cooked lunch. So, हमने मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था जो सबसे पहले तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था और इस प्रोग्राम में बच्चों को कुक्ड लंच प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में. ओके. A movement took place in the USA in the late 1950s to push for equal rights. A movement took place in the USA in the late 1950s to push for equal rights for African Americans is called Civil Rights Movement. So वो movement जो USA में 1950s मतलब एक्चुअली 1964 में स्टार्ट हुआ था जिसपे अफ्रीकन अमेरिकन्स ने डिमांड की थी कि दे वांट यू कैन से इक्वल राइट्स, नो डिस्क्रिमिनेशन एंड दैट वाज एन एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करके आ चुके हैं. सो दैट मूवमेंट इज़ कॉल्ड सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ 1964. No country can be described as being completed democratic. हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि कोई भी कंट्री फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं डिस्क्राइब की जा सकती है बिकॉज बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट को फेस करने पड़ते हैं एंड हमने उन चैलेंजेस के बारे में भी डिस्कस किया था. So yeah, that was all about this chapter. I hope आपको सारे टॉपिक सही से समझ में आ गए होंगे. If you still have any query, so you are most welcome to ask your questions in the comment section. And now let's come to the conclusion part. This video was made by Zoya Khurshid, that's me, and my friend Huda Feroz, and it was edited by Umair Mirza. Thank you so much for watching and please subscribe our channel as well as like this video.